just position your weakened face. The grandfather calm accept of his lost. The poem is phonetically tone and the style pity. The verbal melody and friction expression aid to the beauty and the strength of the poem. It is made by the poem attitude to the old age at the subject of the poem generate the corresponding emotion. It is written in the blank verse. Dom Morris described the grandfather look, the small guest of climb, the web star at the your cell. Means in this poem he describe mostly उन्होंने ये बताया है कि एक ओल्ड एज में जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका लाइफ कैसा होता है, उसकी जो एक रूम होती है वो एक रूम किसके जैसा होता है, तो जेल की तरह होता है, एक तहखाने की तरह होता है जहाँ पे वो बस उतना ही रहता है, उसकी ज़िंदगी उसकी दुनिया उतने तक ही सीमित रहती है, जिसको उसने बनाया इतने मेहनत से, उतना अच्छा उसने किया। मतलब इसमें ये बताया गया कि एक सिंपैथी से रिलेटेड बताया गया, एक हमारे सोसाइटी का कल्चर बताया गया, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें डॉम साहब ने ये बताया कि एक हमारे इंडियन सोसाइटी का कल्चर, हमारे एक कल्चर क्या है कि इन द ओल्ड एज जब इंसान रिटायर हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता है, तो बस उसकी दुनिया कहाँ तक रह जाती है, एक छोटे से कमरे तक रह जाती है। मीन एंड नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट poet is Vikram Seth. Vikram Seth is a well-known poet, born in Kolkata in 1952. He was educated at Doon School, Dehradun. His UG and PG in England and Oxford. Then after he went to the Stanford University, USA to work as a PhD. Vikram Seth work, the author of award-winning book From the Heaven Lake 1983, then The Golden Lake 1986. A novel in verse was selected for the Sahitya Academy Award in 1988, Mapping 1981, All You Who Slept Tonight 1990, The Humble Administrator Garden won the Commonwealth Poetry Prize. Homeless, Vikram Seth. I envy those who have a house of their own, who can say their feet rest on what is there alone, who do not live on the sufferance in the stranger cells, as my family has all our life, and as I probably will. Means homeless is a lyric like any lyric. It is characterized by the singleness of through moods or emotion. Homeless is also characterized by the feeling that is elaborate, the expositor settlement by the speaker set the tone, the speaker speak from inside some stronger cell. He has to leave it sooner or late. Therefore, he envy those who have a house of their own. In the first stanza, he describes the homeless consider to the speaker and his family member, who characterize the speaker's merely condition is something which is completely devoid of any expression or response of pity or sympathy from the listener. There is a peculiar dignity. It is marked by the diction stripped of any mobile emotion. The speaker does not include
in the self-pitying. As the poem moves on to the second stanza, its gamut of the meaning widens. It universalizes the felt emotion. The speaker enviews unoccupied place on the earth for the content and peace they bring in having such an. The place is the speaker and aspect of the experience that the imitation of the permanence it gives to those that they live in. There is a sitting in the trail as the poet touched on death. The poet's sense of homelessness again in breadth and the depth of the meaning. Nagging conscience of monitude lead a dignity of the meaning. It is not a negation of life but a streak of irony color of the mood differently. And indisputably of the death, philosophically we all are homeless as we have a deed farewell to the good health. Here the poem विक्रम सेठ describe, विक्रम सेठ ने ये बताया है कि होमलेस क्या है. होमलेस मीन्स इट इज़ वन काइंड ऑफ फेयरवेल. जब हम लोग इस धरती से हम लोग जाते हैं तब होमलेस मीन्स वी ऑल आर अ होमलेस एंड हियर वी जस्ट नो अबाउट द फीलिंग ऑफ आवर नेबर. हम लोग होमलेस सभी हैं लेकिन जस्ट कहाँ से है तो हमारी फीलिंग होनी चाहिए उस प्रकार के कि हमारे कोई पड़ोस में है, उसका घर नहीं है तो हम लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे पोएट ने लास्ट लाइन में जो बोला है बहुत सही बोला है कि हमारा सब कुछ है लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है. आफ्टर आवर लास्ट फेयरवेल, जब हमारा फेयरवेल हो जा रहा है, जब हम लोग इस धरती से चले जाते हैं तब हमारा क्या, तो वी आर ऑल्सो द होमलेस. स्टूडेंट्स, इन दिस topic, the selected poem, we learn about the Vikram Seth poems, the homeless, Dom Morris's poem, the grandfather, Ramanujan poems, the small scale of old great house, and Nazim Ezekiel, the professor. In these all poems, again we are repeat, नज़ीम एज़ेकिन द पोएट द प्रोफेसर, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन द प्रोफेसर एंड हिज स्टूडेंट्स, कि भाई रिटायरमेंट के बाद एक प्रोफेसर की लाइफ कैसे हो जाती है, जो मतलब ऑन सर्विस कितने लोगों के बीच में रहने वाला, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं बचते, सिर्फ किताबें होती है और वो होता है. और इसमें एक और चीज़ बताया जाए, इसमें इन दिस पोएम द पोएट नज़ीम एज़ेकिन ऑल्सो वन थिंग इज़ वेरी नाइस इज़ द रिलेशन ऑफ फादर्स एंड द डॉटर, कि भाई कोई भी पिता होते हैं उनकी सबसे लास्ट जो उनका काम होता है वो होता है लड़की की शादी. यदि वो लड़की की शादी कर लिए मीन्स ही आर कंप्लीटली रिटायरमेंट फॉर हिज ऑल सर्विस एंड हिज न्यू लाइफ इज स्टार्ट विथ हिज द ग्रैंड चिल्ड्रन. इन द सेकेंड पोएट रामानुजन, द स्मॉल स्केल ऑफ रिफ्लेक्शन द ग्रेट हाउस, उसमें उन्होंने ये बताया कि ग्रेट हाउस क्या है. तो ग्रेट हाउस पूर्वजों के द्वारा दिया गया. ग्रेट हाउस डेट मीन्स अ ग्रेवयार्ड, जहाँ से कोई भी वापस आता नहीं है, जो भी जाता है वो वहीं पे रह जाता है. हाँ, उन्होंने एक चीज़ और बताया कि कुछ लोग की सीमा कहीं तक होती है, कोई घर तक होते हैं, कोई जैसे उन्होंने बताया है इन दिस पोएम ही ऑल्सो डिस्क्राइब हिज कि माई डॉटर saw me from the window. Why the daughter saw from the window? Because she was married. क्योंकि वो शादी हो गया है, मतलब उसका वो शादी होने के बाद वो पराई हो गई है, मीन्स ये बताया गया. इन द थर्ड, डॉम मॉरिस द ग्रैंडफादर, ही डिस्क्राइब कि भाई ओल्ड एज क्या है.
कि ओल्ड एज में हम लोग कैसे होते हैं कि कितना भी बड़ी संपत्ति अपने बना ले, लेकिन एक जब वो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब और उसका एक पूरी लाइफ होती है, उसकी पूरी दुनिया कहाँ तक हो जाती है, तो एक छोटे से कमरे तक, जिसको यहाँ पे पोएट ने एक प्रिजन के रूप में डिस्क्राइब किया। एंड इन द लास्ट में उन्होंने जो बताया है कि होमलेस क्या है। होमलेस, विक्रम सेठ ने ये बताया कि होमलेस इज वन काइंड ऑफ पर्सन, वी ऑल आर होमलेस, हम सभी होमलेस हैं, और जिसमें हम लोग मतलब यहाँ से जब हमारा फेयरवेल हो जाता है इस अर्थ से, तब हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। इन चारों पोएम का पूरा कंक्लूजन है, और इसी तरीके से हमारा ये लेक्शन समाप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।